یہ وہ میں آپ کو سائن دینے جا رہی ہوں کہ اگر آپ گھر بیٹھے اپنا ایگزام اندر کا اپنا انٹرنل ایگزامینیشن چاہتے ہیں تو آپ یہ خود سے کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اپنی پلس پہ ہاتھ رکھیے۔ ایک نارمل انسان کی جو پلس ہے نا، اس کی یہ پیلپیٹیشن یہ چلتی آ رہی ہے، مسلسل یہ چل رہی ہے، لیکن جس وقت آپ کے ہارٹ کی آرٹریز بلاک ہونا شروع ہوتی ہیں، ان میں پلاک بننا شروع ہوتا ہے، تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یہ چل رہی ہے نبض، یہ پھر یہ چلنی شروع ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز جو ہے نا، یعنی بے ترتیب، ناظرین، میں ہوں آپ کی ہومیوپیتھک لیڈی ڈاکٹر سائمہ عباس مہدی، LCH ویریفائڈ، پنجاب، پاکستان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل القائم ہومیوپیتھک کلینک۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دل کا درد ہمیشہ سینے میں محسوس نہیں ہوتا؟ بعض اوقات یہ درد اتنی خاموشی سے اندر ہی اندر بڑھتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی کی کچھ ایسی عادات، کچھ ایسی بے احتیاطیاں ہیں جو دل کی شریانیں بند کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور ہم اپنی انہی بے احتیاط عادات کے ساتھ زندگی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کیا ٹوٹ پھوٹ ہو۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ دل کی شریانیں بند ہونے کی وجوہات کیا کیا ہے، اور اس کے بعد جانیں گے کہ ہومیوپیتھی کی وہ کون سی شاندار طاقتور ادویات ہیں جو آپ کے دل کو نئی زندگی دے سکتی ہیں، اور آپ اپنی ایک نارمل لائف کی طرف واپس پلٹ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ میں سے جس کو بھی اپنے دل کے لیے ایک صحت مند زندگی چاہیے، وہ اس ویڈیو میں میرے ساتھ آخر تک رہے، چونکہ ناظرین، آپ کا دل آپ کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ ناظرین، دل کو ایک پمپنگ مشین سمجھنا دل کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ یہی دل ہے جو آپ کے اندر احساسات کو اجاگر کرتا ہے، جو آپ کو اچھائی برائی میں تمیز سکھاتا ہے، جو آپ کو کچھ بھی اچھا یا برا کرنے پر روکتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مان رہا۔ یہی وہ دل ہے جب آپ قرآن حفظ کرتے ہیں اور قرآن پاک کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محفوظ کرتے ہیں، تو سوچئے دل کا کتنا اہم کردار ہے، دل کتنا اہم آرگن ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ دل کی شریانیں بند کیوں ہوتی ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جو ایک اچھے بھلے صحت مند دل کو بیمار کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو دل کی شریانیں دل کے وہ راستے ہیں جن سے گزر کر بلڈ آپ کی پوری باڈی کو سپلائی ہوتا ہے، اور جب یہی راستے تنگ ہونے لگتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ راستے تنگ ہو رہے ہیں، یہ بھی مت سمجھیے کہ شریانیں تنگ ہو رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہوتی ہے، آپ کی زندگی کا جو دائرہ ہے وہ محدود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دل کی شریانوں کی جو تنگی ہے وہ عموماً کولیسٹرول، چکنائی اور کیلشیم کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے میڈیکلی لینگویج میں پلاک بولا۔ لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اور ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے جب یہ پلاک آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو شریانیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور دل کو روٹین سے ہٹ کر پمپنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بلڈ فلو پراپر طریقے سے گزر نہیں پا رہا ہوتا تنگی کی وجہ سے۔ یہ جو مسلسل دل کو زور لگانا پڑتا ہے، اس زور لگانے کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ عمل جو ہے بڑا خاموشی سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی علامات انتہائی شدید ہوتی ہیں، جب بھی ظاہر ہوتی ہیں بہت شدید ہوتی ہیں۔ ان اثرات کی سختی اور شدت کیا ہوتی ہے؟ سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری شروع ہو جاتی ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا دل کی شریانوں کو اور دل کو مضبوط اور صاف رکھنا
आज के दौर की अहम तरीन ज़रूरत है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि दिल की शरेयानें बंद होने की वजूहात क्या क्या हैं। मैं उनमें से महज 5 वजूहात आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपके लिए कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो आइए बढ़ते हैं उन 5 अलामात की तरफ जो दिल की शरेयानें बंद करने का सबब बनती हैं। पहली जो वजह है वो है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती। जी नाज़रीन, जब हम फैटी फूड्स, फास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये फैटी फूड और फास्ट फूड इस्तेमाल करने के बाद हम अपनी जगह से हिलना भी गवारा नहीं करते, तब आपके दिल की शरेयानें बंद होने का खदशा दुगना हो जाता है। नंबर 2 पे जो आता है वो है हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि मुसलसल ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो दबाव है वो शरेयानों में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शरेयानों की दीवारें जो हैं वो ज़ख्मी हो जाती हैं। नंबर 3 पे आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है यानी खून में शक्कर की ज़्यादती जो है वो शरेयानों को नुकसान पहुंचाने का बायस बनती है। नंबर 4 पे आता है तंबाकू नोशी। जी नाज़रीन, तंबाकू नोशी जो है वो दिल की शरेयानों की जो लचक है उसको नॉर्मल नहीं रहने देती, सख्त कर देती है और इस सख्ती के साथ साथ शरेयानों में तंगी भी पैदा हो जाती है। नंबर 5 पे आता है स्ट्रेस, जो आज के दौर में इंतहा दर्जे पर है। नाज़रीन, जब मुसलसल स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स हैं जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पहले की कुछ वीडियोस में इसका जिक्र भी किया हुआ है, ख़ुसूसी तौर पे जो मेंटल हेल्थ के लिए बनी हुई है। तो जब मुसलसल स्ट्रेस चल रहा होता है और हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे होते हैं तो वो इम्बैलेंस हार्मोन जो है वो शरेयानों को कमज़ोर करते हैं। अब मैं बात करने लगी हूँ उन अलामात की कि अगर हमने कोई टेस्ट नहीं भी करवाया, कुछ एक ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी रूटीन से हटकर हो रही हैं, जिनको हम सिम्टम्स कहते हैं, तो बात करते हैं उन सिम्टम्स की जो बिना किसी टेस्ट के अगर आपके सामने आ जाए तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो रही। नंबर 1, चलते वक्त आपके सीने और बाजू में दर्द महसूस होगा। नंबर 2, सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी या बेतरतीब हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पे मैंने जिक्र किया है कि दिल की धड़कन तेज और बेतरतीब हो जाएगी। अगर आप अब नॉर्मली, अब ये मैं बेतरतीब का आपको बताती हूँ, ये वो मैं आपको साइन देने जा रही हूँ कि अगर आप घर बैठे अपना एग्ज़ाम अंदर का अपना इंटरनल एग्जामिनेशन चाहते हैं तो आप ये खुद से कर सकते हैं। क्या आप अपनी पल्स पे हाथ रखिए। एक नॉर्मल इंसान की जो पल्स है ना, उसकी ये पैल्पिटेशन ये चलती आ रही है, मुसलसल ये चल रही है। लेकिन जिस वक्त आपके हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू होती हैं, उनमें ब्लॉक बनना शुरू होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये चल रही है नब्ज, ये फिर ये चलनी शुरू हुई। समझ रहे हैं? ये चीज़ जो है ना, यानी बेतरतीब दिल की जो ज़रबात हैं, जो नब्ज़ की ज़रबात हैं, वो बेतरतीब हो जाती हैं, चलती हैं, फिर एक जगह पे रुकी, फिर उसके बाद चलना शुरू हुआ। और जब वो रुकती हैं तो बाकायदा आपको सीने में, अपने दिल के अंदर एक मखसूस एहसास जो है ना, और बड़ा तकलीफ दे एहसास महसूस होता है, जैसे दिल एकदम से बैठ गया या बस ऐसे बंद हो गया या फिर ऐसे खुल गया। ये कैफियत होती है। नंबर 4 पे जो है वो है चेहरे का सुन्न होना, हाथ पाँव का सुन्न होना और खसूसी तौर पे कमज़ोरी महसूस होना। नंबर 5 पे जो है वो रात के वक्त खसूसी तौर पे बेचैनी महसूस होती है, ठंडा पसीना आता है, सांस में घुटन का एहसास होता है, दिल चाहता है कि दरवाजे और खिड़कियां खोल दी जाएं, क्योंकि ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं होम्योपैथिक की उन अद्वियात की जो आपके दिल की ज़िंदगी बढ़ाएंगी, जो आपने दायरा इन आर्टरीज की सूरत अपने लिए तंग किया है या बंद किया है। ये अद्वियात उस दायरे को अपनी सिमत पे वापस पलटाएंगी। आपकी आर्टरीज जो प्लग के ज़रिए ब्लॉक हो चुकी हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगी।
जो नुस्खा मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके दिल की सेहत अच्छी हो जाएगी, आपके दिल के पट्टे मजबूत हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर इतदाल पे आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल अपने लेवल पे आ जाएगा और आपके हार्ट की जो आर्टरीज ब्लॉक है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगी, ब्लड फ्लो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, वो ये है कि जहाँ अपनी मेडिसिन आपने रेगुलर लेनी है वहीं पर एहतियात लाजमी करना है, परहेज़ का खसूसी ख्याल रखना है। नंबर 1 पे जो मेडिसिन आ रही है वो आ रही है क्रेटिगस क्यू। जी नाजरीन, नोट कर लीजिए, क्रेटिगस क्यू 20 कतरे सुबह दोपहर शाम। आप पूछिए कि ये दवा काम कब करेगी। जी, ये दवा उस वक्त काम करेगी जब आपके दिल की शरियानें बंद हो चुकी होती हैं, कैल्शियम की वजह से, चिकनाई की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो एक प्लाक बनना शुरू होता है और ये प्लाक आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा होता है। ये मेडिसिन क्रेटिगस जो है ये उस ब्लॉक को ख़त्म करेगी, रगों की जो सख्ती है उसको बैलेंस पे लेकर आएगी, उसमें लचक पैदा करेगी। दिल की शरियानें जो लचक हो चुकी होती हैं, उनमें सख्ती आ चुकी होती है, ये उस सख्ती को ख़त्म करेगी। और आपको इन वजूहात की बिना पर जो अंजाइना या हार्ट अटैक का खौफ पैदा हो जाता है, ये अंजाइना और हार्ट अटैक के चांस को ख़त्म करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल की जो ज़रबात हैं वो आप नब्ज़ के ज़रिए, अपनी पल्स के ज़रिए चेक कर सकते हैं, बेतरतीब हो जाती हैं। तो जब आपके दिल की ज़रबात जो बेतरतीब होती हैं, रुक रुक के नब्ज़ चलती है आपकी, ये उस प्रॉब्लम को भी फिक्स करेंगी, आपके दिल के पट्टों को मजबूत करेंगी इंशाल्लाह। नंबर 2 पे जो मेडिसिन आती है वो है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा। ये भी क्यू में सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे पानी के अंदर। कैक्टस मेडिसिन जो है ये उन पेशेंट्स के लिए बेहतरीन वर्क करेगी जो लोग चेन स्मोकर होते हैं, पिछली लाइफ में या मौजूदा भी उसी तरतीब से चल रहे होते हैं और उनके दिल के गिलाफ की झिल्ली मुतवर्रम हो जाती है। नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ पेरिकार्डाइटिस की। जब दिल के गिलाफ की झिल्ली कमज़ोर होती है, मुतवर्रम होती है, उसमें सोजिश हो जाती है, इससे हटकर ये मेडिसिन उस वक्त बेहतरीन वर्क करती है जब आपका दिल के दर्द की वजह से ये दर्द आपके सीने से आपके लेफ्ट बाजू में आ रहा होता है। और इसी के साथ साथ जब आपके हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, उसका वाल्व तंग होना शुरू हो जाता है, उसमें तंगी आनी शुरू हो जाती है, ये मेडिसिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा क्यू में बेहतरीन रिजल्ट देती है। इस मेडिसिन का जो पेशेंट है उसका दिल कमज़ोर हो जाता है, यानी दिल की सेहत जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाती है और पेशेंट को मुसलसल ये एहसास रहता है जैसे उसका दिल किसी लोहे के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। सांस में मरीज को तंगी बहुत महसूस होती है, बीपी जो है वो उसका लो होना शुरू हो जाता है और लो बीपी की वजह से उसका हाथ और पाँव जो है वो बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर जो मैं तीसरे नंबर पे मेडिसिन आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है आरम मेटालिकम 200 में। आरम मेटालिकम 200 हफ्ते में 2 बार। अब बात करते हैं आरम मेटालिकम की सिम्टम्स की कि ये किस पेशेंट के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इस मेडिसिन में मैं आपके साथ पेशेंट की 2-3 मेंटली सिम्टम भी शेयर करूंगी कि अगर ये वाली सिम्टम्स भी पाई जाएं तो आरम मेटालिकम कमाल की मेडिसिन बनती है और हैरत अंगेज रिजल्ट्स देती है। आरम मेटालिकम का जो पेशेंट है उसकी मेंटली तौर पे जो कंडीशन होती है वो खुदकशी की, सुसाइड की तरफ राग़िब होती है, उसकी तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से। रगें बंद होती हैं, सांस में तंगी हो रही होती है, घुटन हो रही होती है, ना लेट कर सुकून होता है, ना बैठ कर, ना खड़े होकर। अगर खुली हवा में भी चले जाए तो आर्जी तौर पर फाका होता है। आप खुद सोचें कि जो नेचुरली तौर पे जो कुदरत की तरफ से आपको एक साफ शफाफ दिल और उसकी रगें फराहम की गई थी, आपने उसके साथ हाल क्या किया? ब्लॉक हो गई।
अब वो निज़ाम तो वैसे चल नहीं रहा होता, पेशेंट को इतनी तकलीफ़ होती है कि वो ये सोचता है कि मैं अपनी जान छुड़ाऊँ, मैं अपनी जान ही ख़त्म कर दूँ। तो ये इस मेडिसिन के आरएम टेलिकम के पेशेंट की सबसे बड़ी सिम्पटम है मेंटली तौर पे, कि उसकी रग़बत जो होती है वो ख़ुदकुशी की तरफ होती है। पेशेंट जो है हर वक्त मायूस रहेगा, गमगीन रहेगा, सोचों में उलझा रहेगा। जो एक हैरानकुन बात है वो ये है कि पेशेंट को मौत का खौफ बहुत होता है, हत्ता कि वो अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तों से भी खौफज़दा हो जाता है, घबराता है उनसे। इसी मेडिसिन की अगर फिज़िकली तौर पे बात की जाए कि फिज़िकली इसकी क्या सिम्पटम होगी, इसके दिल की क्या कैफ़ियत होती है, तो नाज़रीन, जो आरएम टेलिकम का पेशेंट होता है उसको लगता है कि उसका दिल चंद सेकंड के अंदर बंद हो जाएगा। मरीज़ के दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है, दिल की धड़कन बेकायदा होती है, वही ज़रबात जो मैंने आपको पहले बताई हैं कि बेतरतीब चलती हैं, ऐसे ऐसे चल रही होती है, फिर ऐसे रुक गई या यहाँ पे आके रुक गई और फिर ये चल पड़ी, और फिर चलते चलते एकदम ऐसे या फिर ऐसे। यही वाली कैफियत इस दवाई में भी पाई जाती है। मरीज को सांस में बहुत ज़्यादा तंगी महसूस होती है कि वो मुसलसल गहरे सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन गहरा सांस उसको मुश्किल से ही आता है। इसलिए सांस जो है ना उसका, बस मैं शायद वो कैफियत बयान नहीं कर सकती। अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद साहब की भी यही पोजीशन थी। मेरे वालिद साहब हार्ट पेशेंट थे और उनकी ये बिस्मिल्लाह हुई थी इसी पोजीशन से कि उनकी जो ज़रबात थी ना दिल की, वो बेतरतीब हो गई थी। लेकिन उस वक्त मैं स्टूडेंट थी और शायद मैं उस लेवल पे नहीं पहुंची थी कि इन सारे मामलात को समझ सकती। इसके अलावा जो है बायोकेमिक साल्ट में लाजमी आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये बड़ी जल्दी कवर करते हैं और बड़ा अच्छा जो है वो इसका रिजल्ट आता है। कालीफास 6x 4 गोलियाँ सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम। यह साबी कमज़ोरी को ख़त्म करेंगी, मिजाज के चिड़चिड़ेपन को ख़त्म करेगी, नर्वस सिस्टम जहाँ पर भी डिस्टर्ब होगा उसको फिक्स करेंगी। इससे हटके मैगफास 6x, इसकी भी 4 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम लाजमी लीजिए। आप अगर गौर करें तो ये एक मुकम्मल नुस्खा मैंने आपको दिया है। 2 क्यू, 1 पोटेंसी और 2 बायोकेमिक, ये वो है जो दिल की शरियानों को खोल देंगे। अपने अल्लाह को याद कीजिए और इस दवाई का बरतना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह शफा होगी। मज़ीद मैं एक बात और कहूँगी कि अलामात अगर शदीद हों तो फिर आप अपने उसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जिसके ज़ेरे इलाज आप चल रहे हैं, या फिर किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से जाकर मेडिसिन लें। अगर मुझे से मशवरा करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर चल रहा होता है, आप वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आखिर पे बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी एहतियात है जिसको अपनाकर हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं या फिर बच सकते हैं। फास्ट फूड से परहेज़ कीजिए, ज़्यादा चिकनाई वाले खानों से परहेज़ कीजिए, नमक जो है वो इत्तदाल में रहकर खाइए, वॉक लाजमी कीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए और स्ट्रेस से दूर रहिए। जबकि मुझे ये भी पता है कि आज के दौर में आप स्ट्रेस से दूर कैसे रह सकते हैं। यहाँ पे सब स्ट्रेस में है इस टाइम, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन अल्लाह पाक रहम फरमाएगा। देखिए, दिल बहुत अहम है, इसकी अहमियत को समझिए, क्योंकि दिल सिर्फ धड़कता नहीं है, बल्कि दिल वो चिराग है जो आपकी ज़िंदगी को रोशनी फराहम करता है। अपनी ज़िंदगी की रोशनी बुझने ना दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिए ताकि आपको मेरी बाकी भी वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपके आसपास कोई आपका प्यारा आर्टरी ब्लॉकेज में मुब्तला है तो काइंडली ये वीडियो उस तक लाजमी पहुंचाइए, सदका जारिया समझकर पहुंचाइए। होम्योपैथिक एक नेचुरल और 100% महफूज तरीका इलाज है। और मेरी अगले आने वाली वीडियो जो है, मैं उसमें होम्योपैथिक के 10 ऐसे हकाइक आपको बताऊंगी जो शायद खुद होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी नहीं पता।
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔